related to integrals. So 2 or 3 different forms are already discussed. Now consider the following form. I already have discussed the questions based on this. If you quickly recall the form like this or this, we already have considered the questions. So this is what we did in the last class. X square plus 1 upon x power 4 plus 1 type questions, wherein dividing by x square, first step, completing the square in the denominator is my second step, and then it will convert to a direct sum formula, and then substitution and simplify. This we called as say I1, because similar kind of an integral where there will be the negative sign in the numerator will be there. So we consider that as say I2. Method is exactly the same, dividing by x square, completing the square here, and then substitution and integrating. So usual steps were there. And when I considered few more questions like this, now this is a special technique based which gets I1 and I2 inside this. So technique is already discussed. Another very similar question, this question. Again, another 5 marker. Similar technique is followed and getting I1 and I2 involved in this. Now, further application is via this question. So please check this out. Root tan x or say root tan theta d theta. We have to integrate this. Simple steps हैं, quick check. Put root tan theta को t. ये t put कर दिया पूरे क्वेश्चन को. Squaring both the sides. So tan theta का डेरिवेटिव secant square theta d theta और 2t का 2t dt. Secant square theta में RHS में ले आया like this. और अब secant square क्या होता है? 1 plus tan square. और tan theta था t square. तो tan square theta बन जाएगा t power 4. What is the purpose? Now theta is on the LHS, d theta, or RHS is whole in terms of t only. So that when I substitute the values in my question, now, so this is integrate root tan theta, which is t, d theta, which is 2t upon 1 plus t4, substitute the value. So this is my question. बस अब इसके बाद तो इस वेरी बेसिक पिछला क्वेश्चन बन चुका है. 2t स्क्वायर दिखाई दिया ऊपर, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1, मतलब प्लस 1 और माइनस 1 कर दिया. सेपरेट देम and I1 and I2 we started with these two only in the beginning. बस अब आपको पूरा यहां पर इंटीग्रेट फिर कंप्लीट सॉल्यूशन जाएगा, ये याद रखिए. सो यू नीड टू शो दैट कंप्लीट सॉल्यूशन ओवर हियर. Similarly, root cot theta can be integrated, but when I talk about say root sin theta, so that is not integrable. So if I give you this question, this is non-integrable. Why this is not integrable? The methods and the rules of deciding at university level. But इसी में अगर मैं यहाँ लिमिट लगा देता हूँ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. Then in the gamma functions बोले जाते हैं again at the university level, तब मैं फिर इसको सॉल्व कर सकता हूं. तो आपके पास एज मेंशन्ड सिर्फ वही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो एक्चुअल में इंटीग्रेबल होंगे. सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. Check this out. Another question. First step is most important. इसे देखकर डिवाइडिंग बाय cos 4 थीटा कर दिया.
न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 1/cos 4x विच इज sec4x, और इधर ये बन गया tan 4x+1। अब टेक्निक को ध्यान से समझिए, ऊपर sec4 को लिख दिया sec² इंटू sec², और फिर sec² को लिख दिया tan² + 1, 10th का ही फॉर्मूला है। तो इस स्टेप तक अगर आप पहुंच गए, देन वी हैव अ सिंपल हिंट, tan थीटा को t रखा, tan x को t रखा, sec² dx dt में आ गया डेरिवेटिव में, एंड क्वेश्चन कन्वर्टेड इनटू दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज नथिंग बट माय t1 सॉरी i1 ओनली। याद करिए, वी स्टार्टेड विद दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल, तो वही है कि ये आफ्टर सम स्टेप्स, आफ्टर सम सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चंस विल रिड्यूस टू दैट पर्टिकुलर फॉर्म, जहां अब मुझे डिवाइडिंग बाय t² करना पड़ेगा, और फिर डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना रहेगा। सो यूज दोज मेथड्स। लास्ट जो आपके पास स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म होती है, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। वी कॉल ये आपकी फॉर्म नंबर 5 हो गई। फर्स्ट 4 हम देख चुके हैं। किस तरह के इंटीग्रल हैं, sin x + cos x or sin x - cos x is in the numerator, and in the denominator there is a presence of sin 2x। अब प्रेजेंस ऑफ sin 2x किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मतलब से 9 + 16 sin 2x, और मान लो नीचे है अंडर द रूट 1 + sin 2x, समथिंग लाइक दिस। तो प्रेजेंस ऑफ sin 2x, और ऊपर है sin x प्लस और माइनस cos x। सो दीज टाइप ऑफ इंटीग्रल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। तो उसमें हम सिंपल रूल लगाते हैं, ये है वर्किंग रूल, न्यूमरेटर को t पुट करेंगे। बट ये क्वेश्चन अभी जो मैंने लिया है, देखने में तो नहीं लग रहा कि वो इस फॉर्म में है। एक दो स्टेप सॉल्व करते हैं। चलिए, पहले कॉट को लिख दिया कॉस बाय साइन, टैन को लिख दिया साइन बाय कॉस। टेक द एलसीएम, सो ये आ जाएगा रूट साइन एक्स कॉस एक्स, और ऊपर क्या आएगा अगर आप ध्यान से देखें, ये रूट कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स आ गया, और इधर ये आ गया साइन एक्स। √2 से रैशनलाइज कर दीजिए इसे। चलो मैं लिख देता हूं कॉस प्लस साइन को साइन प्लस कॉस, और √2 से रैशनलाइज करते ही थिंक लॉजिकली, √2 अंदर आ गया। पर्पस भी समझ आ जाना चाहिए कि √2 ही क्यों मैंने लिया था, बिकॉज नीचे अगर अब आप ध्यान से देखें, इट बिकम्स रूट ऑफ साइन 2x। नोट केयरफुली दिस क्वेश्चन। सो कई बार बोर्ड में क्या हुआ है, ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन दे दिया, मतलब इंस्टेड कि ये क्वेश्चन दिया जाए, थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। सो एनी डाउट टिल दिस स्टेप? After this particular step,
क्या कहा था, पुट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर को टी। अब ये स्टेप यहां लगेगा। सो डेरिवेटिव क्या है इसका, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आफ्टर आइडेंटिफिकेशन कि ये फॉर्म 5 टाइप है, न्यूमरेटर के डेरिवेटिव को टी पुट करा। अब जरा ध्यान से सोचो, इसका डेरिवेटिव करूं, चलो, माइनस साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दिया। नेगेटिव साइन में आरएचएस में ले आता हूं, ये आ गया। इसका साथ में स्क्वायरिंग भी कर दो, जो भी आपने टी माना था। सोचो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये 1 हो गया। दिस इज डायरेक्ट फार्मूला साइन 2x, और रीअरेंज कर दूं तो साइन 2x की वैल्यू अल्टीमेटली मिल गई मुझे 1 माइनस टी स्क्वायर। So look at the following 3 things. अब इन तीनों को मैं इंटीग्रल में पुट कर देता हूं। तो मेरा इंटीग्रल ये था, आई बन चुका था। इसमें अगर मैं पुट करूंगा, क्या हो जाएगा, ये √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, वो माइनस डी टी है तो माइनस डी टी बाय रूट साइन 2x, और साइन 2x है 1 माइनस टी स्क्वायर। सो क्वेश्चन सिर्फ इतने में कन्वर्ट हो गया। दिस इज अ डायरेक्ट फार्मूला, साइन इनवर्स टी का इंटीग्रल हो गया। टी की वैल्यू क्या थी, cos x माइनस साइन एक्स। नेगेटिव साइन अगर मैं अंदर कर देता हूं तो यू कुड राइट दिस as your required answer. Please mark your attendance. So, based on the special type of integrals which I have discussed just now, here is the homework for you based on this identification. मैंने आंसर भी दिए हुए हैं, ये फर्स्ट का आंसर है यहाँ पर, so that you can easily understand. सेकंड रूट कॉटेक्स हो गया, और थर्ड इसी फॉर्म का जो अभी लिया है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन। अटेम्प्ट देम, एंड अगर नहीं हो देन यू कैन चेक आउट द सॉल्यूशंस। सो दे आर ऑल सॉल्व्ड हियर। नेक्स्ट ऑन जो अब हम बात करेंगे, दैट इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनिशियली ही मैंने बता दिया था, जब हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, indefinite integrals and definite integrals. So far till now we only talked about indefinite integrals.
But there is the another idea of definite integrals. In fact, the concept of integral was emerged initially using the definite integrals as the area under curve. The application of this is in the next chapter. But as of now, we are done till I think NCERT 7.7. तो इसके बाद अब जो बात करी गई है एक्चुअल में एक्सरसाइज 7.8, जिसे कहा गया है लिमिट ऑफ अ सम का कंसेप्ट, बट दिस इज deleted in our reduced syllabus. So there is a formula ke how we can understand the basic meaning and definition of a definite integral, and using that we have the few approaches and methods to get the integral, but as of now that is not required. So basic idea अब आपको यहां देखो फिर क्या समझना है कि जब मैं बात करूंगा, जब मैंने टर्म यूज करी डेफिनेट इंटीग्रल, तो एक तो वो क्या हो जाता है, मान लो मैंने लिख दिया 1 से लेकर 2 तक, और मान लीजिए मैंने यहां पर कोई भी एक इंटीग्रल लिख दिया x² + 1. So this type of question is referred to as your definite integral. What we need to understand, this is known as a lower limit. 1 जो लिखा है, ऊपर जो 2 लिखा है, that is the upper limit. और फिर जब मैं इसको यूजुअल वे में इंटीग्रेट करता हूं, हम ऐसे नॉर्मल वे में इंटीग्रेट कर देते हैं और +c लगाते हैं, बट देयर इज अ रीजन व्हाई आई विल एक्सप्लेन दैट. वो +c नहीं लिखेंगे और ये हम कहते हैं कि इंटीग्रल हो गया फ्रॉम 1 to 2. और 1 to 2 होने का मतलब क्या है, यहां पर अपर लिमिट पुट कर दो, x की जगह 2 पुट कर दीजिए अपर लिमिट, फिर माइनस कर दो ये लोअर लिमिट, x की जगह 1 पुट कर दो अब की बार. सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, this will be the value of this definite integral. But what is the meaning and significance of getting this some numerical value? If I consider the graph of this function, this is a parabola actually, and I check the area bounded by x-axis from 1 to 2, the area would be this numerical value, जो भी हमें मिलेगी यहां. So basically, definite integral is giving me the area bounded by some function y equal to fx from the limit x is equal to a to x is equal to b. So this is all referred as our first fundamental theorem of integral. As I mentioned above, area function. Second fundamental theorem of integral calculus, how I calculate this integral. तो वो ये जो मैंने यहां सॉल्व करके दिखाया है अप्रोच. So upper limit minus lower limit, something like that. Check this out. Evaluate the following integrals. अब क्वेश्चन से ही कंसेप्ट हो सकता है आपको और ज्यादा क्लियर होगा. यस, तो अब आप चेक करिए, आपको इंटीग्रेट करना है 2 to 3. देखो लिखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते थे, 2 इधर 3 इधर लिख दिया, तो वो डिपेंड करता है. ये एक ही बात है कि 2 से 3 में x² को इंटीग्रेट करना है. तो जो आपको बताया था, आप नॉर्मल वे में इंटीग्रेट कर दीजिए x³/3, एक्चुअल में तो +c आएगा अंडर द लिमिट 2 to 3. बट जब आप मैंने कहा आप x को अपर लिमिट पुट कर दो, 3 पुट करो, हमेशा पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट. जब मैंने अपर लिमिट 3 पुट करी तो 3³/3 और +c एज इट इज आ गया. जब माइनस करूंगा और लोअर लिमिट पुट करूंगा तो 2³ x की जगह 2 रख दिया by 3 + c. व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट, c से तो c कैंसिल होना ही है हर बार, इसीलिए हम
डेफिनेट इंटीग्रल में ये प्लस सी लिखते ही नहीं। नेक्स्ट ऑन जब आप चेक करोगे, आई विल नॉट यूज दैट। बस इसके बाद आपने सॉल्व करा और ये आपके पास आंसर आ गया 19/3। बट एट द सेम टाइम इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो यहां देखो। कर्व क्या था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व था मेरा। मैंने एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला, ये पैराबोला ड्रॉ करके दिखा दिया। सिंपल पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब लिमिट क्या थी, 2 to 3। तो अगर एक्स एक्सिस पे मैंने 2 से 3 में, और इस कर्व के साथ जो ये एरिया बना है बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूं, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, इस कर्व ने जो एरिया बनाया वो एरिया एक्चुअल में 19/3 स्क्वायर यूनिट्स होने वाला है। सेम वे चेकआउट सेकेंड पार्ट, यहां जो दिया है ये सेकेंड पार्ट। अब फॉरगेट द लिमिट्स एज ऑफ नाउ, 4 to 9 कहा था। सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करने के लिए एक कितना तो अब आपको आइडेंटिफाई करना ही रहेगा। क्या चीज, नीचे वाले को टी रखा, ऊपर डेरिवेटिव है। बट अब मैं क्वेश्चन को जब टी की टर्म्स में चेंज कर रहा हूं, ये लिमिट्स तो एक्स की टर्म में थी, तो आप पहले उन लिमिट्स को भी टी की टर्म्स में रिप्लेस कर दीजिए। क्या मतलब, व्हेन एक्स इज 4, आप ये सब्स्टिट्यूशन किया था, एक्स की वैल्यू 4 रख दो एंड सॉल्व इट, टी आ गया 22। सिमिलरली व्हेन एक्स इज 9, फिर आपने यहां एक्स को 9 पुट कर दिया, टी आ गया 3। So that my question finally converted into this, सारी वैल्यूज पुट कर दी है इन टर्म्स ऑफ टी। इसे इंटीग्रेट करा, पुट द अपर लिमिट एंड देन माइनस लोअर लिमिट, you'll get your required answer. फॉरगेट अबाउट दिस, so एक फॉर्मूला मैंने भी नीचे लिखा है, ये बाद में हम लेंगे जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्चुअली आता है। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो 7.8 डिलीटेड है, एनसीईआरटी ये डिलीटेड है। और इसके बाद एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10, ये दोनों आपकी विदाउट एनी प्रॉपर्टीज या विदाउट एनीथिंग बहुत इजीली आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे, ईदर अ डायरेक्ट इंटीग्रेशन और मे बी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो अब जो मैं बात कर रहा हूं अभी तक जो हम स्टार्ट कर चुके हैं वो एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10 बेस्ड है। सो एवरीवन प्लीज चेक आउट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व्ड इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम वेटिंग, समझिए इसे ध्यान से। इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल, सिंपल है आपके सामने, इंटीग्रेट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो मैंने नीचे बताया है इसका और मेथड, आई जनरली प्रेफर टू यूज दिस मेथड। वो क्या किया मैंने डिफरेंस, ये एक लीनियर है ना, x+1 को मैंने एज अ सिंगल मान लिया फंक्शन, एज अ लीनियर,
और लीनियर में x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो बस मैंने x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 डायरेक्ट एक ही स्टेप में इंटीग्रेट कर दिया, पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एंड सिंप्लीफाई। ऑफ कोर्स बोथ विल गिव यू द सेम आंसर, बट आई जनरली प्रेफर दिस अप्रोच। सेकेंड समझ आ गया होगा, सिंपल है, ये इंटीग्रेट करना है, 1/x का इंटीग्रल log x हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और log a माइनस log b, log 3/2। 3/2 पॉजिटिव ही है इसलिए मैंने मॉड को हटा दिया है। याद रखिए जब हम अब इंटीग्रल में स्पेसिफिकली बात करते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन दिस मॉड। दो जब डेरिवेटिव्स में भी किसी क्वेश्चन में लॉग आया था, वी शुड हैव मेंशन्ड लॉग ऑफ मॉड एक्स, बट उस समय थोड़ा सा इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एनसीईआरटी पार्ट 1 की बुक में ही है, न नॉर्मली यूज नहीं करा है। दो दे हैव मेंशन्ड दिस के अंदर लॉग के नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि ऑब्वियस है ये, बट नॉट एवरीथिंग इज ऑब्वियस, यू नीड टू जस्टिफाई दैट और लॉजिक वो बताना है। तो इस केस में आई ऑलवेज रिकमेंड जब भी लॉग वाली टर्म इन्वॉल्व हो, अंदर वाले एक्सप्रेशन के साथ मॉड बिल्कुल लगाइए, चाहे वो डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो या इंटीग्रल का। डेरिवेटिव में क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। इंटीग्रल के अंदर क्योंकि एनसीईआरटी में मॉड बिल्कुल यूज हुआ है, तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट। चेकआउट फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ होमवर्क में आएगा। सो यूजुअल मेथड है, इंटीग्रेट करा, साइन 2x का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस 2x, और 2x का डिवाइड बाय 2 भी करना रहेगा, अंडर द लिमिट 0 to π/4, पुट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड सिंप्लीफाई। इनफैक्ट अगर मैं साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ करता और फिर 0 से π/4 के बीच में ये एरिया देखता मैं, तो दिस एरिया इज एक्चुअली हाफ स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया के साथ एक्चुअल में लिंक करा गया है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स योर चैप्टर नंबर 8 के अंदर अलग से। सो अगेन अ वेरी क्विक चेक, मैंने 2 क्वेश्चंस यहां चलिए सॉल्व कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8th एंड 10th दे विल बी इन योर होमवर्क। स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, अवेलेबल, देखिए ध्यान से, 1 मिनट। कहीं भी कोई डाउट आए तो प्लीज डू लेट मी नो। Any doubt to anyone? So I believe the questions are clear. Solution बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन गई हैं। Similarly 12th 13th बहुत इजी हैं। आप देखिए cos स्क्वायर x को कैसे आपने इंटीग्रेट करा था, पहले उसका फार्मूला यूज करते हैं। यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस डायरेक्टली, तो पहले उसका फार्मूला, फिर इंटीग्रेट कर दिया यूजुअल मेथड से, फॉलोड बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
वे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की, वो ऑब्वियसली आपको याद हैं, तभी आप इसको आगे कर पाएंगे। ऐसे ही 13th क्वेश्चन को इफ यू नोट केयरफुली, अब ये सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, नीचे वाले को टी पुट करा, ऊपर डेरिवेटिव, बट एज मेंशन्ड सब्स्टिट्यूशन जब भी होगा तो आपको लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट तो ये x की थी, तो अब आपको इन्हें चेंज करना होगा इन टर्म्स ऑफ t, सो दैट सारे क्वेश्चंस की लिमिट t की टर्म्स में ही आ जाएंगी। सो रिमेनिंग ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, कुछ के साथ हिंट्स भी दिए हुए हैं। तो आइलेट को भी अप्लाई करना पड़ सकता है, सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट फॉर्मूला, सो दैट एक्सरसाइज 7.9 इन योर होमवर्क, ये भी आपके साथ में ही रहेंगे। क्वेश्चन सिंपल हैं, ट्राई आउट दीज क्वेश्चंस आल्सो। व्हाट्स द आंसर टू 21st? चलिए ये लास्ट आप बताइए, आई एम वेटिंग। 21st का आंसर क्या है? करिए इसे सॉल्व, देखिए। यस, एनीवन? This is our direct integral tan इनवर्स x 1/1 + x², बस इंटीग्रेट करा एंड लिमिट्स आ गई अपर, तो x की जगह रूट टी रखा और फिर आ गया tan इनवर्स 1। व्हाट इज tan इनवर्स √3? ये आपको रिवर्स ये वैल्यूज याद होंगी। तो √3 होता है π/3 के ऊपर, और ये होता है π/4। सो टेक द LCM एंड सिंप्लीफाई, π/12 your required answer. Everyone, please mark your attendance and then you can leave the class. Yes, everyone, leave the class.